Good evening everyone. So today we are going to discuss name based classifier and it is a supervised machine learning algorithm. इसमें होते क्या है actually it predicts the category of something like whether is a email is spam or not by looking at the probability of different features like words in an email. अब कैसे पता चलता है जब इनसे ये क्या बोलते it is a spam or not. Suppose आपका कोई email है and it is written something free. Something free, discount and all these type of terms is being used in the email. तो आपको क्या लगेगा? तो that is a spam because कहीं nothing comes for free. Nothing comes for free, so it is considered a spam. There is quotation, no? There is nothing that comes for free. So we would say that means it is a spam. Simple. And what happens in name-based classifier? Let me explain in my own words. What happens in name-based classifier? It is first of all it is a machine learning algorithm. It is a machine learning algorithm. Machine learning algorithm. And what happens? It predicts the category. It predicts the category of something like whether an email is spam or not by looking at some words in a text. By looking at some words in a text, okay, like free or discount, okay, it's like this. तो ये सारे क्या करते हैं मीन्स जब आपका जब नेम बेस्ड क्लासिफायर है वो ये करते हैं क्या बोलते हैं प्रेडिक्ट करते हैं एंड इट प्रेडिक्ट्स the output must be categorical. Output must be categorical. Now what is categorical? First we should understand. जैसे एज यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया वो वोटिंग येस और नो, वोटिंग का एक बंदा कर सकता है या नहीं, येस या नो, इस तरह कोई आउटपुट है. ठीक है, एज 21 है तो ही कैन वोट, एज 15 है ही कैन नॉट वोट नो, एज 17 है ही कैन नॉट वोट नो, एज 21 है ही कैन वोट येस, एज 27 है तो ही कैन वोट येस. इस तरह का जब आउटपुट है, दिस टाइप ऑफ आउटपुट्स, इसको क्या बोलते हैं? दिस आर नोन एज कैटेगरिकल. व्हाट इट इज नोन एज कैटेगरिकल. कीप इन माइंड दिस आर नोन एज कैटेगरी. इस तरह का जब आउटपुट हो तो यू कैन यूज नेम बेस्ड क्लासिफायर. कीप इन माइंड. एंड इट इज ए प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर. दिस इज ए प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर. प्रोबेबिलिस्टिक classifier. Why probability? Because in the name itself, can you see the name? This Bayes theorem. In the name itself it says एक Bayes theorem एक है stats में. It depends on this. Bayes theorem का formula से we can categorize that what it is mail or not, or spam or not, or something like that. Okay, through Bayes theorem only. So it is a probabilistic classifier. Keep in mind. And why it is naive? The term naive, because it assumes that each feature or attribute is independent. But in actual, it is dependent. एक्चुअल में क्या है? इट इज डिपेंडेंट है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इन नेम बेस्ड वी कंसिडर इट दैट इट इज इंडिपेंडेंट इन नेचर, बट इट इज एक्चुअली नॉट इंडिपेंडेंट. दैट वी विल सी लेटर ऑन. अंडरस्टूड? So what will happen in this classifier? Actually, we are going to calculate the probabilities, and then we are going to put the values, and we will get the output that it is yes or no. So we will be taking some you can say data set, and we are going to understand the things. But before that, what we do?
we have to understand that things. Okay, what is Bayes theorem and all. Okay, if you do not understand all these concepts, it's not possible to understand anything. So first we should know what is Bayes theorem. First we are going to understand what is Bayes theorem. One second. First we should understand what is Bayes theorem. But before Bayes theorem we should understand Bayes theorem तो आएंगे, लेकिन उसके पहले क्या आएंगे, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. Okay, then we will be discussing independent events. And then dependent events. होप आप लोग क्लियर हो रहे हैं. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब ये कैन यू सी दिस बेस थ्योरम, जस्ट आई हैव रिटन ऑपोजिट. फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस वन. फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट. ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होते हैं. सपोज इंडिपेंडेंट इवेंट में आई एम टॉसिंग ए कॉइन. तो क्या होगा, टॉसिंग ए कॉइन, तो आउटपुट क्या हो सकता है, हेड या टेल. तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. एक बार हेड आएगा तो टेल नहीं आएंगे, एक बार टेल आएगा तो हेड नहीं आएंगे. तो दैट इज नॉट एज इंडिपेंडेंट इवेंट. सेकंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिपेंडेंट इवेंट. सपोज देयर आर 5 balls, 3 red and 2 black. 3 red and 2 black. Now what will happen? Suppose I want to see the probability of black. So what will be the probability? So 2 by 5 is the probability of black. Okay, 2 by 5 is the probability of black. Now again this is an event. Event 1. Suppose I am going to find the probability of black. It is 2 by 5. Okay. Now एक 2 by 5 करके एक मैंने ब्लैक निकाल लिए. तो बचा कितना ब्लैक. Now how many black balls left after this event? After event 1, black balls left equal to 1. क्योंकि 2 ब्लैक बॉल था, एक ब्लैक बॉल मैंने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी फ्रॉम इवेंट 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 2 by 5. तो एक निकल गया. तो टोटल बॉल्स लेफ्ट कितना रह गया, बॉल्स लेफ्ट इक्वल टू कितना रह गया, 4. क्योंकि 5 से एक बॉल मैंने निकाल लिया. तो हाउ मेनी बॉल्स आर लेफ्ट, 4 balls are left. Now again I am going to find the probability of black ball. Find the probability of black ball considering that one black ball is taken out. Means A/B I am writing. When A given B, when one black ball is being taken out given. Okay, now I am going to find out another black ball, the probability of another black ball. So what will be the value? 1, because one black ball is left. And what are how many balls are left? 4. So 1 by 4. This is event 2. Event 2. Can you see that probability of A given B means probability of drawing black ball given that one black ball is already taken out. एक ब्लैक बॉल में पहले ही निकाल चुके हैं. ठीक है, कहाँ से निकाला, इवेंट 1 से. मैंने एक ब्लैक बॉल निकाल के 2 by 5 प्रोबेबिलिटी से. तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल क्या रह गया, 1 रह गया. एंड हाउ मेनी बॉल्स आर लेफ्ट, 4 balls are left. 4 balls. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल, नेक्स्ट जो ब्लैक बॉल है, गिवन दैट वन ब्लैक बॉल इज टेकन आउट, already taken out. तो क्या होगा, 1 black ball तो 1 upon total balls left कितना, 4. तो 1 by 4. This is event 2. So these are all dependent events. These are dependent event. But in name ways we consider it to be dependent. We consider it to be dependent. This is what I mean to say. We consider it to be dependent. Now we will understand each and everything properly.
नाउ आपको इंडिपेंडेंट समझ में आ गया, डिपेंडेंट समझ में आ गया. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आफ्टर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेस थ्योरम. इज इट क्लियर? नाउ लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. वन सेकंड. Okay. Now move one more example. Marbles in a bag. Marbles in a bag. रेड और ब्लू दोनों दो टाइप का मार्बल है. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज 5. ओके, वही सेम टाइप का प्रीवियस वाला एग्जांपल ही है. ब्लैक बॉल्स, टोटल ब्लैक बॉल्स. Black balls, total black balls equal to 2. Total red balls equal to 3. Is it clear? Now what I have to do? I have to understand the concept. Okay, we have to understand the concept properly. Now, how many total number of balls are how much? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now I am going to take a first event. Probability of A. मैं क्या कर रहा हूँ? ब्लैक बॉल निकाल रहा हूँ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? इक्वल टू 2/5. आई एम टेकिंग ब्लैक बॉल्स. ओके, तो टोटल बॉल्स कितना रह गए अभी? टोटल बॉल्स कितने रह गए? 4. 1, 2, 3, 4. 4 ब्लैक बॉल्स रह गए. अंडरस्टूड? This is the first event. Now what I am doing? Again I am taking out one more black ball. I am taking out one more black ball. The probability of B given A. Probability of B given A. Okay, मैंने A इवेंट हो चुका है. मतलब क्या होगा? दो बॉल था, उसमें एक ब्लैक बॉल मैं निकाल चुका हूँ. तो कितने बॉल ब्लैक बॉल रह गए? एक ब्लैक बॉल रह गया. और बॉल्स टोटल कितना रह गया? 4 रह गए क्योंकि एक तो निकाल गए. तो इक्वल टू हाउ मच? 1/4. वो आप लोग क्लियर हो रहे. 1/4. तो टोटल बॉल्स कितने लेफ्ट हो गए? यहाँ से एक ब्लैक बॉल निकाल लिए, इधर से एक और ब्लैक बॉल निकाल लिया. हाउ मेनी ब्लैक बॉल्स आर लेफ्ट? 3 ब्लैक बॉल्स आर 3 balls are left. 3 total balls are left. Understood? So this is what I am doing. Now there is a formula. Let me write it. Probability of A equal to how much? 2/5. Probability of B equal to how much? 1/4. Now probability of B given A. Probability of B given A equal to how much? 1/4. Hope it's clear. Probability of B given A. Let me write again. Probability of B given A equal to how much? 1/4. Hope it's clear हो गया. अब probability of A intersection B. Intersection मतलब क्या है? दोनों इवेंट्स हो चुके हैं. इसके मीनिंग ये है, मीन्स what is the probability? What is the probability? What is the probability of both events? Of both events taking place. Of both events taking place. तो ये कैसे निकालेंगे? Probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B given A. Simple. Equal to how much? 2/5 into 1/4 equal to how much? 2 to the 4, so equal to 1/10. For both the events to take place, the probability is how much? 1/10. Now from here, what I am doing? From this equation, this is equation 1. Keep in mind this is equation 1. The probability of B given A equal to what is the value? Probability of A intersection B upon probability of A. Okay, so this is known as the conditional probability. Keep in mind, this is the conditional probability. Conditional probability. Probability. Okay, and this is and the events that are taking place. These are all independent events. ये सब क्या है? Independent, dependent events. These are all dependent events. These are all dependent events. होप आप लोग क्लियर हो गया. अब हम लोग बात करेंगे बेस थ्योरम की. ओके,
Now we know that probability of B given A equal to probability of A intersection B upon probability of A. ओके और यदि मैं ऐसे करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी करूं, ए गिवन बी, बी गिवन है, ऐसे ए गिवन बी, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो नीचे वाला पार्ट है ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वी कैन राइट लाइक दिस, ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हाउ मच, यू टू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into probability of B given A. Just write it like this. This is one. This is second equation, you can say second equation, and from here I can write probability of A intersection B equal to probability of B into probability of A given B. This is the third equation. तो क्या हो गया, probability of intersection B इधर भी है इधर भी है, उसका मतलब दोनों इक्वल है, तो 2 equal to 3 we get 2 equal to 3, दोनों को इक्वल कर दो, वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, दोनों में इक्वल कर दिया, ओके, तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B equal to probability of A into probability of B given A upon probability of B. Can you say this? ये जो इक्वेशन मेरा निकले, this is what Bayes theorem is. This is what Bayes theorem is. यदि एक बार समझने में ये हो तो यू कैन रिवाइंड इट एंड यू कैन चेक इट, ओके, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम। आप इसमें बेस थ्योरम में जो है ये सारे का एक एक मीनिंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ओके। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसको क्या बोलते हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी, ओके। ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इसको क्या बोलते हैं, लाइक्लीहुड, ये जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं, लाइक्लीहुड, आप लोगों को पता होना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल, ठीक है। ये सब टर्म्स आप लोग को जानना चाहिए, बट यहाँ पे ये सब टर्म्स मैं कहीं भी यूज नहीं करूंगा, ओके, बट यू शुड नो अबाउट दिस प्रोबेबिलिटीज एंड द बेस थ्योरम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस, ओके। नाउ वी विल कम टू नेव बेस्ड क्लासिफायर, नाउ वी विल कम टू नेव बेस्ड क्लासिफायर। इतनी सारी कहानियां होने के बाद हम लोग नेव बेस्ड क्लासिफायर की बात करेंगे। लेट मी वन सेकेंड, नेव बेस classifier. Now we are going to explain this thing, name based classifier. This is very important, very very important. So what is this? This is a classification problem. Keep in mind, this is a classification problem. It is a classification problem. Classification problem. ये क्या है? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ओके। ये सारे बातें आप लोग को पता होना चाहिए। दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एंड दिस इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ओके। एंड it uses the concept of Bayes theorem. ओके ये सारे दो चार पॉइंट जो मुझे याद आ रहे हैं, ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ, ओके। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेटा सेट।
अब क्या होता है, एक डेटा सेट होता है, उस डेटा सेट से ही हम लोग सब कुछ करते हैं. हाउ द नेम बेस्ड क्लासिफायर यूज्ड, हाउ बेस थ्योरम यूज्ड, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट वी शुड हैव द डेटा सेट. x equal to x1 x2 x3 xn. ये सारे हैं, इसको क्या बोलते हैं, फीचर्स बोलते हैं. विल टेक एन एग्जांपल, डोंट वरी अबाउट इट. ये सबको फीचर्स बोलते हैं. एंड y, एक y आएगा, ठीक है. एंड दिस इज नोन एज द आउटपुट. Okay, this is the output. x1 x2 x3 xn is are the features and y is the output. Okay, and this is categorical in nature, and the output is the categorical in nature. कैटेगरिकल इन नेचर. अब कैटेगरिकल मतलब क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ये स्नो, एक बंदा वोट कर सकता है या नहीं, ये सारे क्या कैटेगरी है. दीज आर ऑल नॉट न्यूमेरिकल. ओके, दीज आर ऑल कैटेगरिकल. तो कैटेगरिकल नेचर का जो चीज़ है, तो देयर वी आर गोइंग टू यूज दिस. ओके, वो इतना क्लियर हो गया. नाउ बेस थ्योरम क्या कहते हैं, व्हाट इज बेस थ्योरम. अब बेस थ्योरम में क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए स्लैश बी है तो बी स्लैश है, सिंपल ऑपोजिट, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ये पहले था इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिंपल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ओके, ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का निकाल रहा है, मतलब क्या, ए इज द, व्हाट इज दिस, ए, दिस इज द आउटपुट and these are the inputs, and this is dependent, and the input is the independent. Okay, एग्जाम्पल ले लो, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. जैसे सपोज कहीं पे मीन्स वी आर फार्मिंग, ठीक है, तो क्या हो रहा, बारिश, उसके बारिश जब आती है तो फार्मिंग अच्छी होती है. बारिश है, उसके बाद हमें खाद देना पड़ता है, खाद मतलब मैन्योर. हाँ, उसके बाद बहुत सारा मीन्स उसको देखभाल करना होता है उस पौधे की और उस प्लांट की. देन ओनली व्हाट हैपेंस, देन ओनली वो पौधा अच्छे से ग्रो करते हैं. यू नो दिस थिंग्स. तो जैसे बारिश है, जैसे मैन्योर है, जैसे और भी सारे फीचर्स हैं जो हम यूज़ कर उसको ये करने के लिए, मीन्स पौधे को अच्छे से ग्रो करने के लिए, सो दैट इट कैन गिव अस द बेस्ट आउटपुट. ओके, तो वो जो सारी चीज़ें पहले कर रहा हूँ आउटपुट से पहले, दोज आर नोन एज द इंडिपेंडेंट फीचर. ठीक है, बारिश, सपोज बारिश की जरूरत है, बारिश नहीं हुआ तो इट कैन नॉट डू एनी, दैट इज इंडिपेंडेंट. वो चाहे तो होगा, वो चाहे तो नहीं होगा. ठीक है, और डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट यदि इंडिपेंडेंट फीचर यदि प्रॉपर्ली ना हो तो फिर आउटपुट क्या होगा, आउटपुट में गड़बड़ाएंगे, सिंपल. तो दिस इज व्हाट बेस थ्योरम ऑन. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, यहाँ पे फीचर्स जो है, फीचर्स आर ऑल इंडिपेंडेंट, एंड वाई इज द आउटपुट. मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन x1, x2, x3 ... Understood? This is the what it is written. Okay, तो y is the output and x1, x2, x3 ... xn जितना तक जाएंगे तो these are all independent features. Hope इतना clear है. Which is equal to what you can write, probability of, उल्टा होता है, जैसे यहाँ पे a given b, यहाँ पे क्या क्या b given है तो उल्टा करेंगे यहाँ पे भी, probability of x1 given y into probability of x2 given y ... probability of ... ऐसे करके चलते जाएंगे, probability of y लास्ट में, probability of y जो था, जैसे यहाँ पे a था तो a का क्या probability of a कर दिया, अपॉन probability of क्या करेंगे, x1 ले लो, probability of x2, these are the features, probability of x3 ... probability of xn लास्ट तक जितना तक जाएंगे. अंडरस्टूड. जैसे यहाँ पे हुए x1, x2, x3, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनपुट क्या है, b है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b लिखिए. लेकिन यहाँ पे बहुत सारा है, x1, x2, x3, xn जितना तक है, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में. इतना होप इतना क्लियर हो गया. विच इज इक्वल टू, यू कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ y इनटू, ये सारे मल्टीप्लाई है, इनटू हम क्या करेंगे, पाई लगा देंगे, i इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ xi
स्लैश वाई कर दो। अब क्या हुआ, एक्स आई इक्वल टू 1 हो गया तो प्रोबेबिलिटी x1 गिवन वाई, आई इक्वल टू 2 हो गया तो प्रोबेबिलिटी x2 गिवन वाई, ऐसे करके चल रहा है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो वैल्यू है, कैन यू सी दिस वैल्यूज x1 x2 x3, ये सारे वैल्यूज, ये सारे क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, constant value, this is same, which is same for every record। हर रिकॉर्ड के लिए ये वैल्यू सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। कैसे, लेट अस सी, a probability of or probability of y given x1 comma x2 comma x3 dot dot dot, you can write it like this, is directly proportional to probability of y, इसको कांस्टेंट ले लिया, इसको आप यू कैन इनटू लिखो पाई आई इक्वल टू 1 to n p ऑफ एक्स आई गिवन y। ठीक है, और ये वेयर 1 अपॉन, अब आप बोलोगे पी ऑफ x1 x2 x3 ये सब कहाँ गया, 1 अपॉन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ xn इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल ये वाला है, दिस वन इज प्रोपोर्शनल सिंबल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ऑफ वाई इंटू आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई पी इंटू पी ब्रैकेट में एक्स आई गिवन वाई। ओके, और ये जो नीचे वाला पार्ट था, नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट, उसको हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कर दिया, वो आप लोग समझ में आ गया। अब व्हाट आई विल राइट, और y इक्वल टू जो आउटपुट है, y इक्वल टू क्या होगा, आर्गुमेंट मैक्स ARGMAX आर मैक्स y, अब क्या लिखेंगे, p ऑफ y इंटू पाई आई इक्वल टू 1 to n p ऑफ एक्स आई गिवन y। अब ये तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या हुआ, इस तरह का जो इनपुट आउटपुट्स आएंगे, ये सारा आउटपुट्स है, p ऑफ y इंटू दिस, ये जो आउटपुट्स है, ये मैक्सिमम जिसका होगा वो है y का आउटपुट, सिंपल। इस तरह का हम बहुत सारा आउटपुट्स निकालेंगे, ये इसका जो वैल्यू होगा, ये मैक्सिमम जिसका होगा वही आउटपुट है y का। ठीक है, आउटपुट जिसका वैल्यू ज़्यादा है वही y का आउटपुट है, आउटपुट शुड बी द बेस्ट, आउटपुट शुड बी मैक्सिमम। Okay, that's why I have written argmax y। Okay, now we are going to take an example of what, a database, data set you can say। Now let me take a data set, wait for a second, let me take this data set, ये एक डेटा सेट है, कैन यू सी दिस डेटा सेट, ये एक डेटा सेट है, इसमें क्या दिया, आउटलुक एक दिया हुआ, कैन यू सी दिस आउटलुक, एक आउटलुक है, एक टेम्परेचर, एक ह्यूमिडिटी है, विंड है, एक प्ले है। तो क्या है आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट फीचर, दिस प्ले, कैन यू सी दिस प्ले is the dependent feature, okay, play is the dependent feature। अब एक बच्चा है, एक one child is there, yeah, he will play or not, it depends on these features, outlook, temperature, humidity। If it is sunny, temperature is hot and humidity is high, तो क्या होगा, a child cannot play, we parents won't let the child play, understood, क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। तो these are the things given, okay, this is the data set already given, okay, from this data set we can see all the things। अब एक सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे, उस सिचुएशन में दैट चाइल्ड विल प्ले और नॉट, दैट इज डिफाइंड बाय, दैट वी विल फाइंड आउट थ्रू दिस बेस थ्योरम, यू कैन से नेब बेस्ड क्लासिफायर, यू कैन से। नाउ हाउ आई टू फाइंड आउट, लेट अस सी, ये डेटा सेट दिया हुआ, चेक दिस डेटा सेट फर्स्ट, ओके, इस डेटा सेट का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मैं आउटलुक के बारे में लिख रहा हूँ, लेट मी राइट इट, let me draw a table first,
Let me draw a table. This is a table, okay? टेबल में क्या हो गया? 1 2 3 4. Now let me draw the lines. One, 2, 3, and I am taking this was 4. Okay, what I will do, let me show you. Let me draw from this data set only. I am drawing these things. 1 2 3 1 2 3 4. वो कितना क्लियर है आप लोग का? अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? आउटलुक. दिस वन इज द आउटलुक. व्हाट आई एम टेकिंग आउटलुक. आउटलुक फीचर. ओके, आउटलुक फीचर. इसमें क्या है? एक यस है, एक नो है, और एक पी ऑफ एन. ओके, अब इसमें कौन कौन सा वैल्यूज है? सनी है, ओवरकास्ट है, सनी, ओवरकास्ट, रेन, और क्या है? एनीथिंग एल्स? सनी, ओवरकास्ट, रेनी. 3 है. सनी, ओवरकास्ट, रेनी. राइट इट. सनी, ओवरकास्ट, रेनी. ये नेम बेस में कैसे ये कैलकुलेशन होता है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर बेस्ड ऑन दिस डेटा सेट. क्या हो रहा है पीछे एक्चुअली? हम क्या करते हैं इन द लैब? व्हाट वी डू, वी जस्ट take the library, okay, and just put the values, we pass on the table and we get the output. What is actually happening, that I am going to teach over here. Okay, तो this is sunny, overcast, rainy. ये तीन ये the features था. sunny है, overcast है और rain है. 3 है. rainy. अब sunny में कितना yes है? sunny में let me see. sunny, this is sunny. यहाँ पे भी no है. this sunny, इस sunny में यहाँ पे yes है, और सनी इसमें भी येस है. 2 येस है. सनी में कितना येस है? 2 येस है. ओके, 2 येस है. और कितने डेटा सेट कितना है? 2 येस है. और नो कितना सनी में? 1 2 एंड 3 नोज है. 3 नोज. वो आप लोग क्लियर हो रहे हैं? सनी में क्या है? 2 येस 3 नोज. राइट प्रॉपरली. 2 येस है, 3 नोज है. ओके, सनी में क्या है? 2 येस 3 नोज. ऐसे ओवरकास्ट में आप चेक करो. ओवरकास्ट में लेट अस सी. दिस वन इज येस. ओवरकास्ट. दिस वन इज ऑल्सो येस. 2 येस 3 येस 4 येस 4 येस. नो नोज. 4 येस 0 नोज. 4 येस 0 नोज. और रेनी में क्या है? 3 येस 2 नोज. और ये टोटल कर दो. मेक इट टोटल कितना हुआ? 4 3 7 2 7 प्लस 2 9. और यहाँ पे क्या? 3 प्लस 2 5. इज इट क्लियर? वो अभी तक क्लियर है? येस नो पी ऑफ वाई. दिस वन इज पी ऑफ वाई एंड एक होगा पी ऑफ एन. नो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ येस है एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नो. अब कैसे करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ येस निकालेंगे. तो येस कितना है? 2 है ना. 2. और टोटल कितना वैल्यू है? 9. तो 2/9. और नो कितना है? नो 3 है. और कितना टोटल वैल्यू? टोटल वैल्यू इज 5. तो 3/5. कितना क्लियर? ओवरकास्ट में येस कितना है? 4. और टोटल वैल्यू कितना है? 9. तो 4/9. और येस नो कितना है? 0/5. मतलब 0 ही हो गया. उसके बाद रेनी में येस कितने हैं? रेनी में 3. तो 3/9. एंड दिस वन इज 2/5. वो भी इतना क्लियर हो गया. अब यदि मैं कैलकुलेट करूँ 4 + 3 7 + 2 इज 9. 9/9 इज 1. मतलब क्या? ये 100% हो गया. ये भी 100% हो गया. कैसे? 3 + 2 5. 5/5 कितना होता है? 1. तो ये 100% हो गया. सिंपल. तो ऐसे करके मैंने आउटलुक फीचर का किया. ऐसे करके हम टेम्परेचर फीचर का निकालेंगे. ओके, टेम्परेचर फीचर. उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे.
Okay, now let me take that, let me create a table first. Let me draw the lines. Two, three, फोर, ऐसे करके यहाँ पे भी 1 कर दो. 1 2 3 एंड दिस वन इज 4. ठीक है. अब टेम्परेचर में क्या होगा? येस एंड नो, सिंपल, वही सेम स्टाइल, येस नो एंड ऑल. येस, यस, यहाँ पे नो, और यहाँ पे क्या होगा? पी ऑफ वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो. ओके. अब इसमें क्या क्या वैल्यूज है? टेम्परेचर में हॉट है, एक हॉट है, माइल्ड है, कूल है, और एक क्या है? हॉट माइल्ड कूल. 3 है, हॉट माइल्ड कूल. राइट इट, हॉट माइल्ड कूल. और ये क्या टोटल? ओके, दिस वन इज टोटल. अब हॉट में यस, हॉट 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 हॉट, लेट मी सी द हॉट. वेयर इज दिस हॉट? दिस वन इज हॉट. हॉट में ये नो है, हॉट में ये यस है, एक यस मिल गया, एक यस. हॉट में एक यस, और कहीं हॉट 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 एक, यहाँ पे भी एक यस, तो 2 यस है, 2 यस. यू कैन सी फ्रॉम द टेबल इटसेल्फ. ओके, 2 यस. ओके, नो कितना है? 2. आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, सो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली. ओके. माइल्ड में क्या है? 4 यस है, 2 नो है. कूल में क्या है? 3 यस, 1 नो. ओके, तो टोटल इज 9 एंड यहाँ टोटल इज 5. वो इतना क्लियर है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, तो क्या होगा? 2/9, ये होगा 4/9, दिस 4/9, ये है 3/9, 3/9. तो 4 + 3 7 + 2 9/9, तो ये 100% है. ठीक है. पर 9/9 मतलब कितना? 1 हो गया. 1 मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी 1 मतलब 100%. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 2/5, 2/5, 1/5. ऐड करोगे तो 5/5 होगा, तो 100%. दिस इज ऑल्सो 100%. इतना क्लियर है. ये 2 मैंने फीचर ले लिए, जहाँ सारे फीचर्स लेके मुझे करने की जरूरत नहीं है. 2 फीचर लिए, ह्यूमिडिटी विंड को छोड़ दे रहा हूँ और डायरेक्ट मैं प्ले में चला जा रहा हूँ. प्ले, दिस वन इज द आउटपुट, तो आई एम टेकिंग दिस प्ले. प्ले विच इज द आउटपुट. ओके, तो इसका एक टेबल में बनाता हूँ. लेट अस ड्रॉ अ टेबल. Now I have to draw the lines. Okay, now I will write everything what I mean to say. Okay, now what I will do. अब प्ले में कितना यस है, कितना नो है? लेट मी राइट इट. प्ले में येस कितना है? ये जो प्ले फीचर है इसमें येस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 येस है. राइट, 9 येस, 9 येस. और टोटल कितना? 9 येस. तो नोज कितना है आपका? इफ यू काउंट इट एंड इट इज 5. ओके, 5 नोज. राइट, 5 नोज. ओके, टोटल कितना? 9 + 5 इज 14. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ यस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एक ही में लिख रहा हूँ. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितना है? 9/14. और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कितना है? 5/14. ओके, तो टोटल कितना हो गया? 9 + 5 14/14, ये 100%. इस तरह कुछ. तो ये 3 मेरा टेबल बन चुका है. कहाँ से बना?
from this data set. Okay, this is what is happening inside the algorithm. This is what happens inside the algorithm. इस तरह का वो टेबल क्रिएट कर लेता है. मैंने यहाँ पे 2 टेबल बनाए और एक आउटपुट का टेबल बना लिया. यहाँ हालांकि मीन्स when I am going to use the machine learning algorithm in Python, तो we are going to use all the tables. Automatically वो सारे tables को लेंगे. आप you look yourself. ये 2 टेबल बनाते बनाते हमारा कितने टाइम लग गया. Understood? And these are only यहाँ पे कितने फीचर्स है. 1, 2, 3, 4 features are there. कहीं कहीं पे 100 features, 40 features, 30 features, 20 features. तो what a huge calculation it is. Okay, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा. This is what is going on. तो मैं बस just I am showing you that how I am doing a manual simulation. Okay, what is happening actually. Understood? Yeah, you have to, so then only you can understand that what is happening. Understood? तो एक क्वेश्चन क्या है. Now the question comes. Question arises. Today. Today sunny और ये पे हॉट है. ये 2 दिया हुआ है. आज के दिन सनी है और हॉट है. तो ये बच्चा प्ले करेगा क्या नहीं, प्ले और नॉट, ये क्वेश्चन मार्क है. ये एग्जाम्पल एक रोबोट है. सपोज यू आर गोइंग फॉर ऑफिस और आपके घर पे आपका बच्चा है. तो बच्चे एक रोबोट इज लुकिंग आफ्टर योर चाइल्ड. योर वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग. तो अब रोबोट डिसाइड करेगा सनी है हॉट है, उसने एनालाइज कर लिया. अब प्ले और नॉट, अब वो कैसे हो करेगा, हाउ इट विल एनालाइज, इट विल एनालाइज थ्रू दिस कैलकुलेशंस. ओके, बिकॉज इट विल कैलकुलेट इन दिस मैनर ओनली. नाउ हाउ विल डू, यू आर गोइंग टू यूज द बेस थ्योरम. ओके, इट विल यूज द बेस थ्योरम. तो सनी और हॉट, इसको क्या बोलते दिया जाता है. दिस इज x1 and this one is x2. These are the features. These are the features you can say. Okay. अब क्या होगा, probability of yes slash today. Probability of yes slash today equal to what you can write. एक yes होगा तो क्या होगा, प्ले करेगा. नो होगा तो इट वोंट प्ले. सिंपल. प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, आज यस गिवन टुडे में क्या है, सन और हॉट है. ठीक है, टुडे में क्या है, सन और हॉट है. कीप इन माइंड, सन एंड हॉट. तो व्हाट, हाउ आई राइट, इक्वल टू तो इसको व्हाट यू कैन राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस स्लैश सनी कॉमा हॉट. ये 2 फीचर दिया हुआ है. एंड यस हो रहा क्या नहीं, दैट विल सी. तो इक्वल टू व्हाट विल राइट, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन यस into probability of hot given yes into probability of yes into probability of yes upon what I am going to write, probability of today, probability of today. मतलब क्या होगा, सनी और हॉट दोनों है. which is equal to, you can write probability of sunny given yes. मैं सारे स्टेप्स बता रहा हूँ, then only you are going to put the value. probability of hot given yes into probability of yes upon probability of today. क्या होता है, probability of today मतलब क्या होगा, probability of sunny, आज का दिन क्या सनी है, into probability of hot into, ये हमने पहले भी दिखाया था. लेट मी शो यू द थिंग्स. कैन यू सी, probability x1 into probability of x2 into probability of x3. this is what I am doing over here. This is what I am doing over here. probability of sunny into probability of hot. अब ये जो चीज है, ये जो फीचर है, ये क्या है, इसको मैंने क्या बोला था, दिस इज कांस्टेंट. दिस इज कांस्टेंट, सो इग्नोर इट. ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, इसको जरूरत नहीं मुझे. तो हम क्या लिख सकते हैं, we are going to write probability of sunny given yes into probability of hot given yes into probability of
यस। अब we will see probability of sunny given yes. Probability of sunny given yes. Let us see the values. सनी किस में है? टेम्परेचर में, आई थिंक टेम्परेचर, ये आउटलुक फीचर में। सनी गिवन यस क्या है वैल्यू? 2/9, तो राइट 2/9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट गिवन यस। सनी गिवन यस हो गया, सनी गिवन यस 2/9। अब हॉट किस में है? टेम्परेचर में। हॉट गिवन यस क्या वैल्यू है? 2/9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कहाँ से निकलेगी? इस जगह से। कैन यू सी? 9/14 प्ले के लिए 9/14, तो जस्ट राइट 9/14 इंटू 9/14, तो 9 गॉन, तो व्हाट इज द वैल्यू? 2 2 2 7 14 कैलकुलेटेड, तो 2/9 7 63, ओके 2/63 विच इज इक्वल टू 0.031, okay, probability of equal to 0.031, this is the value, okay. अब probability of yes given sunny or hot, probability of no वाला भी मुझे निकालना है। sunny वाला तो निकल गया, no वाला निकालो। probability of no given sunny comma hot, now sunny comma hot, so what I will do over here, sunny comma hot, what I will do, which is equal to probability of sunny given no into probability of hot given no into probability of no, सिंपल। और नीचे वाला छोड़ दो, नीचे डिनोमिनेटर छोड़ दो, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे इग्नोर किया तो यहाँ पे भी इग्नोर कर दो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन नो, यहाँ पे देखते हैं इस टेबल में सनी गिवन नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी एंड गिवन नो, नो इज हाउ मच? 3/5, जस्ट राइट 3/5 into probability of hot given no, hot, probability of hot given no, hot or no, 2/5, so write 2/5 into probability of no. Probability of no is how much? Probability of no is how much? 5/14, right? 5/14. इसको यदि if you calculate it, you will get 0.03571. It's like this, okay. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ yes निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ yes गिवन सनी हॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गिवन सनी हॉट, ये दोनों निकल गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ yes कैसे निकालेंगे? इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ yes इक्वल टू yes वाला वैल्यू ये है ना 0.031 अपॉन, सॉरी 0.35 नहीं 0.85 है, दिस वन इज 85, 0.031 अपॉन 0.031 प्लस 0.08571, ये कैलकुलेट टोटल करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी अब जो प्रोबेबिलिटी आप निकली येस का अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, येस प्लस नो दोनों में निकल गए। तो व्हाट विल गेट? 0.27, प्रोबेबिलिटी ऑफ येस इज 0.27, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्या होगा? इक्वल टू 1 - 0.27, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अल्टीमेट वैल्यू कितना? तो 1 होता है, तो 1 - 0.27 इक्वल टू हाउ मच? 0.73। तो व्हाट वी सी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ येस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो में कितना है? 0.73 और ग्रेटर देन 0.27, ओके, दिस ग्रेटर, देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर ही इज नॉट अलाउड, he is not allowed to play, he is not allowed to play. This is how it is working, okay. So this is how Bayes theorem is applied in net based classifier. Hope आप लोग को समझ में आ गया, अंडरस्टूड। तो ये सारे कैलकुलेशंस होते हैं। आप लोग को यदि एक बार में क्लियर ना हो तो प्लीज गो थ्रू द लेक्चर अगेन एंड यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
Okay, and you should know about it. That's the thing. This is very important. बट इसका ये तो बहुत सिंपल है और बहुत मज़ेदार भी है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें एक डिसएडवांटेज है, जब when the features are complex, or you can say let me write these things. Cons of naive-Bayes classifier. Number one, when the features are highly dependent on each other, highly dependent on each other, then naive-Bayes doesn't work. Highly dependent, ये independent, ये naive-Bayes thinks that all the features are independent of each other. लेकिन कोई ऐसे एक डेटा सेट आगे जिसमें they are highly dependent है, then what will happen? This naive-Bayes classifier will not work. The outputs will be wrong. Simple. Understood? So this is the most. This is one of the cons. One of the cons. This is the more. This is the only con you can say in naive-Bayes classifier. होप आप लोग को naive-Bayes classifier सब क्लियर हो गया. पहले आप लोग बेस थ्योरम का प्रॉपर्ली कीजिए. बेस थ्योरम से पहले यू शुड अंडरस्टैंड द कंडीशनल प्रॉपर्टी द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड, एंड देन ओनली गो थ्रू द बेस थ्योरम, एंड आफ्टर दैट यू गो थ्रू द naive-Bayes द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड. देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. होप आप लोग को ये लेक्चर क्लियर हो गया. एंड इफ देयर इज एनी डाउट, प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल लुक इनटू इट. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर.